It's the quality is not durable. This product is it's done under how should I say that? It's done under like many people, we people, like our staff go through it, check it again and again. After that, this kind of product is made. And in the product which we get in India, it's made up of cheaper quality. So this is the perfect. We got a staff of China, which it's a separate staff which deals in quality. They go on. Usually what happens in China is like if you order something, you'll just give the people what the people other people do in China is that they just give the sample, make us this thing. They don't check out the quality and all. We every like if we give an order to our company, every day, every single day we just go on and keep on inspecting the product. Right now we have got customers from former USSR countries, the major customers. The customers are from Russia, Belarus, Ukraine, Tajikistan, Uzbekistan completely. And we dispatch around 15 to 20 containers a month. But after that, what we are going to do is like we are going to spread it around Scotland and all and all. We are looking for more international European markets, more European markets. Well, you can say me that I am responsible for each and everything. And if I'm not there, I've got my staff whom I trust completely. They are going to look after it, and it's not going to happen like that because I trust them and this company trusts me, so I will not break the company's trust. Right now we are dealing around 50 to 20 containers, 40 HiQ, which is exported from China to Dubai. What happens in Dubai is like even we have got small customers in Gulf such as Oman, Qatar and Bahrain and all. So these container around 20 containers, we dispatch around 20 containers these days. Inshallah, I'm hoping like in future, like after 2 or 3 months, we'll be dispatching around 40 to 50 containers. The pattern is like first we need to go. First, what we did is like 2 or 3 months ago, we thought of introducing this thing into Indian market. Then we stopped because we are not having complete preparation in India. Right now, we are promoting this as like you can see Hira Jewelers, Hira Gold, and all. We are promoting exhibitions. So in exhibitions, we are showing this to our new product to our customers. After that, we are gonna capture dealers from India. We are gonna capture dealers. So we are gonna after that maybe 3 or 2 months we'll be distributing to the dealer. Listen, this thing is like we guarantee it for a year. That's all. Nobody guarantees for this thing, but we give guarantee for this only 1 year. After that, it happens something else. We don't deal it. और बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं ऐसे सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ हीरा ग्रुप के तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अभी मेरे हाथ में आइस ड्रॉप, हीरा आइस ड्रॉप है जो बेहतरीन मिनरल वाटर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। और उसके साथ साथ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट मैंने देखा, वो फर्निशिंग क्लॉथ और ब्लैंकेट्स वगैरह एक अपनी अलग शनाख्त रखते हुए बेहतरीन टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के बेहतरीन वीविंग और अच्छे क्वालिटी के कपड़े और कारपेट्स बना रही है। और आगे इमिटेशंस के का शॉप देखने के बाद मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया को एक ही शॉप में इकट्ठा कर दिया इमिटेशन की दुनिया में। उसमें आयरन्स हैं, उसके अंदर जितने भी हीरे जवाहरात की असली चीज़ों का इमिटेशंस है, ये देखकर बड़ी खुशी हुई। और हीरा गोल्ड की जो खुसूसियत है वो गोल्ड, प्योर गोल्ड 99% जो है 24 कैरेट के जो गोल्ड से के ज़ेवरात उन्होंने बनाया है, बेहतरीन डिज़ाइन किया है और अच्छे अपनी पेशकश की है। खुदा हाफिज़। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि आपा के साथ काम करके मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ। मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं हीरा गोल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में एज ए ब्रांच मैनेजर बेंडी बाज़ार ऑफिस में आपा के साथ 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन आपा को मैं तकरीबन 10 सालों से जानता हूँ, करीब। और काम करने के बाद जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, उससे पहले मैं ये बता दूँ
कि उससे पहले 2.5 साल पहले मेरा आपा के साथ जो 7.5 साल पहले से जो इम्प्रेशन, जो एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि आपा को ना ही मैंने कभी किसी को डांटते हुए देखा, ना ही किसी की गलती पर उस नाराज़ होते हुए, बल्कि उसको अच्छे ढंग से समझाते हुए देखा। एक हमेशा जैसा एक आलिमा को, एक माँ को होना चाहिए, उस तरह आपा ने हमेशा अपने उस परफॉर्मेंस पेश किया है उस तरह का। मैं आपको तकरीबन आपा को जो 10 साल से जान रहा हूँ, आपा का नेचर एकदम, आपा का स्वभाव कूल और एकदम कूल माइंड के हैं आपा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ आपा पराखी में आपा का हाथ लंबे हाथ हैं, जैसा हदीस में आया है कि एक लंबे हाथ वाली औरत, तो एक आपा लंबे हाथ वाली औरत के सीधे हाथ से देती हैं तो उल्टे हाथ को पता नहीं चलता। ये आपा को मैं 2.5 साल से नहीं बल्कि 10 साल पहले जो एक्सपीरियंस हुआ है वो बता रहा हूँ कि आपा का हाथ हमेशा लंबा हाथ रहा है, देने वाला ही हाथ रहा है, ना कि किसी से मांगने वाला हाथ रहा है। और आपा जब मदरसे के लिए जब बॉम्बे में कभी आई भी थी इस नियत से कि कुछ कलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपा शर्मा रही थी कि मैं किसी से कुछ मांगूं। फिर वो इतना शर्म रखती थी कि वो अल्लाह से ही कहती थी कि या अल्लाह बस तू मेरी मदद कर दे कि मेरा मदरसे का काम चल जाए। वो मैं उनको उस वक्त से देखते हुए आ रहा हूँ। और आज जब मैं उनके साथ ज्वाइंट हुआ 2.5 साल पहले, उनके साथ उनके अंडर में काम करने लगा, तो मैंने उनको मैम या मैडम नहीं पाया, बल्कि अपनी बड़ी बहन ही पाया है उनको उनके साथ काम करते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम उनके साथ ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसा कि एक फैमिली एक बिज़नेस को लेकर के चल रही है। और हम उसके अंदर अपने आप को नौकर नहीं बल्कि आपा के भाई समझ कर महसूस कर रहे हैं कि हम आपा के भाई हैं और हम काम कर रहे हैं। इस तरह से मुझे महसूस हो रहा है। इसके अंदर मैं कोई मुगालता या मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एकदम मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि कहने के लिए कि मैं उनकी कुछ अच्छाइयाँ और खूबियाँ बयान कर सकूँ आप लोगों के सामने, जो मैं महसूस कर रहा हूँ दिल में। रही बात जाफ़र भाई की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो मेहनत की है और उन्हें आके मेरे ख्याल से तकरीबन 1.25 साल होने को आ रहा है, और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि एक अकेला इंसान इतनी मेहनत नहीं कर सकता, लेकिन जो वो काम करके दिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी मेहनत अल्लाह कामयाबी देवे। और सभी स्टाफ जितने भी हमारे हैं उनके बोलने पर, और एग्जीक्यूटिव है हमारी, जितनी भी हमारी टीम है, उनके एक दफ़े बोलने पे अल्हम्दुलिल्लाह जो लब्बैक करके सब के सब जमा हो जाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि ना दिन देखते ना रात देखते, सिर्फ ये देखते कि हमारा प्रोग्राम, हमारा जो मुंबई का प्रोग्राम, हमारी कंपनी का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से कामयाब हो। हर एक को यही रहता है कि हम किस तरह से मेहनत करें। सब तैयार रहते हैं कि कोई आवाज़ दे और ये काम बोले, किसी के मुँह से आवाज़ ही नहीं आती कि मैं ये नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक कंपनी के बारे में जानकारी करने से पहले कंपनी के प्रोफाइल को स्टडी करना पड़ेगा कि कंपनी कौन कौन सी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रही है। जैसा हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्कीम्स रखी है, हीरा ज्वेलर्स, हीरा फैंसी और हीरा आइस ड्रॉप और हीरा, ये तमाम चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं अगर हम लोग एक सिस्टम से लेकर चलेंगे तो इसमें कोई लॉस नहीं है। और सबसे पहले लोग समझते हैं कि बिज़नेस मतलब इनके दिमाग में एक बात सोच रहती है कि लॉस है। देखिए, मैं यहाँ पे ये कंपनी का पूरा जितने भी स्कीम्स लगाए हुए हैं इसके बारे में मैं तहक़ीक़ की है। अगर आप लोग ज्वेलरी और आइस ड्रॉप और फाइनेंस और गोल्ड ट्रेडिंग इसके बारे में अगर इसके तहक़ीक़ी मैदान में जाएंगे तो इसके अंदर लॉस नहीं है, मगर हम लोग सिर्फ एक सिस्टम से काम करना है। वो हमारी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी एक सिस्टम से काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर काफ़ी प्रॉफिट नज़र आ रहा है। और लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मगर कंपनी के प्रोडक्ट को देखिए कि कंपनी कौन से चीज़ों से लेकर आगे बढ़ना चाह रही है। मार्केट में ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके अंदर मार्केट में आना या मार्केट में खड़ना मुश्किल होता है, मगर ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो प्रोडक्ट ली है, जो स्कीम्स की शुरुआत की है, जिसके अंदर तिजारत शुरू की है, अगर इस बिज़नेस के बैकग्राउंड, इस बिज़नेस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा जाए तो काफ़ी हम लोगों को इस बात का यकीन होगा कि इसके अंदर लॉस होने के चांसेस कम हैं। जिस तरीके से गोल्ड ट्रेडिंग है, जिस तरीके से ज्वेलरी है, जिस तरीके से आइस ड्रॉप है और टेक्सटाइल्स है, इसके अंदर अगर कंपनी सिस्टम के हिसाब से कोई भी कंपनी काम करती है तो इसमें लॉस के चांसेस कम हैं। तो मैं पब्लिक को ये गुजारिश करता हूँ कि ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ये सिस्टम को देखें और इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में तहक़ीक़ करें कि इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस कैसा है।
और उसके बाद आपको खुद ब खुद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रोडक्ट और इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बेस को आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो हीरा गोल्ड का बिज़नेस का पैटर्न है माशाल्लाह इट इज़ एक यूनिक पैटर्न है और हलाल लेवल पे इतना अच्छा प्रॉफिट और इतना सिस्टमेटिक वे से इतना रेगुलर इनकम आउटपुट प्रॉफिट आउटपुट हमने तो आज तक कभी सुना नहीं। इवन बरसों से मैं तलाश में था, गूगल वगैरह में सर्च मारता था कि कोई तो हलाल ऑप्शन मिले मुसलमानों के लिए। ढूंढ के कहीं जो मेरी नज़र में आता था वो टाटा म्यूचुअल फंड की एक स्कीम थी, उसके अलावा मैंने कोई और स्कीम सुनी नहीं। माशाल्लाह ये स्कीम जो मिली है वो मुसलमानों के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है। अल्लाह नवेरा शौक को, नवेरा आपा को बड़ी उम्र दे और उनके बिज़नेस में बरकत दे। और उसके बाद जो उनका सेकेंड इनिशिएटिव है हीरा फाइनेंस, माशाल्लाह वो तो काबिल तारीफ़ है। इट इज़ ट्रेमेंडस, मार्वलस। ये इनकी सोच ही काफ़ी इतनी ऊंची सोच है सूद को मिटाने के लिए और मुसलमानों के बीच में एक इंकलाब लाने के लिए। ये सोच ही तारीफ़ काबिल है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और इनको कामयाब बनाए। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि जब भी लोगों को हीरा गोल्ड के बारे में बताया जाए तो जिस तरह आपने एक औरत के बारे में शान के बयान की, लोग समझते कि एक ही नुक्स है कि इतना बड़ा बिजनेस एक औरत चला नहीं सकती। लोग भूल जाते हैं कि इस्लाम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए फिर से दुनिया में फैलने लगा तो उस वक्त जिस औरत ने साथ दिया था हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो खुद एक मक्का की बेस्ट बिजनेस वुमन थी और बेस्ट बिजनेस वुमन होने के बावजूद उन्होंने इस्लाम को फैलाने में काफ़ी मदद भी किया। और औरत अगर बिजनेस नहीं कर सकती ऐसा लोग सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। और जहां आज से 1400 साल पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने प्रूव किया था, आज माशाल्लाह नज़रा शेख आपा जैसे औरतें और भी मौजूद हैं जो ये प्रूव कर रही हैं कि बिज़नेस बाकायदा हिजाब में और इस्लाम के दायरे में रह के किया जा सकता है। और ये जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो इंटरेस्ट फ्री बेस पर और इस्लामिक कदरों को लेते हुए काम कर रही है और बाकायदा ये सब काम करने के बावजूद इस्लामी कदरों को हिंदुस्तान में लेकर चलने के बावजूद एक कामयाब कंपनी है। ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। मेरी नेक ख्वाहिशात है कि हीरा गोल्ड ऐसी तरक्की करे और ये हमारा जो सिस्टम है गैर सूदी ये और मुस्तहकम हो, यही नेक ख्वाहिशात है। हाँ, ये भी एक बहुत खुशी की बात है कि हमारी वो माएँ बहनें जो इस्लामी लिबास की पूरी पाबंद है और क्वालिफाइड है, उनको जॉब जो है दूसरी जगह करने में ज़रा दिक्कतें पेश आती है क्योंकि पर्दे का वैसा एहतमाम नहीं हो पाता। ये बहुत खुशी की बात है कि पर्दे के पूरे एहतमाम के साथ हमारी औरतें रिस्क हलाल जो है हासिल कर रही है और हीरा गोल्ड ने उनको अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और वाकई हीरा गोल्ड की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है नौहिरा शेख, वो काबिल मुबारकबाद है, इसकी मुस्तहिक है कि उन्होंने हमारी बहनों को जो क्वालिफाइड है एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। अल्लाह करे हमारी तमाम बहनें जो क्वालिफाइड है उनको वाकई इंटरेस्ट फ्री सिस्टम में उनको अच्छे जॉब्स मिलते रहे।